محترم ناظرین آداب، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سخنی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ آغاز کرنے سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ حکومت کا مسلم ملازمین کے لیے رمضان میں خصوصی رعایت کا اعلان۔ سرکاری اراضی پر قبضوں کو فوری ہٹانے کے احکامات کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے دورہ کرتے ہوئے کی ہدایت جاری۔ طلباء سخت محنت کرتے ہوئے اپنی تعلیمی مہارتوں میں اضافہ کریں اور ملک کی ترقی کے لیے خدمات انجام دیں، سابقہ وزیر و بودھن رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی کا خطاب۔ کسانوں کو درپیش آبی مسائل کے لیے چیف منسٹر اور وزیر آبپاشی ذمہ دار میڈیگوڑا برج کے استعمال سے دانستہ طور پر گریز۔ حکومت کی بے حسی کے باعث لاکھوں ایکڑ پر محیط فصلیں خشک۔ پوریا پیٹ میں کے کویتا کا میڈیا کے نمائندوں سے خطاب۔ ماہ رمضان المبارک میں ٹیکس وصولی اور جرمانے میں نرمی و رعایت کے علاوہ صاف صفائی کے نظم کو بہتر بنایا جائے۔ کانگریس پارٹی اقلیتی قائدین کی نمائندگی پر میونسپل کمشنر نے کیا اقلیتی علاقوں کا دورہ۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر نظام آباد کے سی آر پی کیمپ زوم سوئمنگ پول کے قریب میں کھیل میدان کا عظیم الشان افتتاح۔ محلے وادی حسین کالونی کے کرکٹ کے شوقین نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 800 گز زمین کے احاطے میں کرکٹ گراؤنڈ کا قیام کیا۔ شہر نظام آباد کے سی آر پی کیمپ بودھن روڈ زوم سوئمنگ پول کے قرب میں بلدیہ آفیسر شیخ مسیح صاحب کی زیر سرپرستی میں وادی حسین کالونی کے کھیل کے شوقین نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تقریباً 800 گز زمین کے احاطے میں کرکٹ گراؤنڈ کا قیام عمل میں لایا، جس میں مقامی معززین، کھلاڑیوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور یہ گراؤنڈ نہ صرف نوجوان کھلاڑیوں کے لیے کھیل کے مواقع فراہم کرے گا بلکہ علاقے میں صحت مند سرگرمیوں میں مصروف رکھے گا۔ اس موقع پر محلے کے بچوں کا جوش و خروش دیدنی تھا، جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس گراؤنڈ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ نوجوان کھلاڑیوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اب کھیلنے کے لیے ایک بہترین اور محفوظ جگہ میسر آ گئی ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں گے۔ اس تاریخی موقع پر کانگریس لیڈر طاہر بن حمدان اور سابقہ میئر محمد فہیم صاحب نے فیتا کاٹ کر گراؤنڈ کا باضابطہ افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران نوڈا چیئرمین کیشا وینو، سابقہ کارپوریٹرز محمد قدوس صاحب، مجاہد خان صاحب، اشفاق خان عرف پاپا خان نے مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان نسل کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ کھیل کے میدان نہ صرف صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو مثبت سمت میں راغب بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی سطح پر اس طرح کے اقدامات قابل تعریف ہے اور آئندہ بھی کھیلوں کے فروغ کے لیے تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر بلدیہ آفیسر شیخ مسیح صاحب اور مقامی نوجوانوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ کرکٹ گراؤنڈ کی کمی کی وجہ سے انہیں کھیلنے میں مشکلات کا سامنا تھا، لیکن ایک مناسب جگہ میسر آ گئی ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں گے۔ شیخ مسیح صاحب کے ساتھ مقامی معزز نوجوانوں نے اس اقدام کو سراہا اور حکام سے درخواست کی کہ گراؤنڈ کو مزید بہتر بنانے کے لیے سہولیات فراہم کی جائے تاکہ نوجوان کھلاڑی مزید ترقی کر سکے۔ اس موقع پر مرزا احمد بیگ، مرزا خالد بیگ، بلدیہ آفیسر شیخ مسیح صاحب، نوڈا چیئرمین کیشا وینو، سابقہ کارپوریٹر محمد عبدالقدوس صاحب، محمد فہیم صاحب، مجاہد خان صاحب اور اشفاق احمد خان صاحب موجود تھے۔ آج خوشی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نوجوانوں کو ایک ترقی کے راستے پر، ڈیولپمنٹ کے راستے پر، سپورٹس کے راستے پر چلانے والے جو بھی یہاں پر
ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی اچھی سوچ ہے، نوجوانوں کو غلط راستے پہ نہ چلنے دیتے ہوئے سپورٹس میں انٹرسٹ لینے کے لیے، سپورٹس میں اپنا ٹائم دے کر سپورٹس کرکٹ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے نظام آباد کے نوجوانوں نے خصوصاً اس ایریے میں پرسنی ایک مہینہ پہلے اجتماع ہوا یہ گراؤنڈ میں، ایک زوم سوئمنگ پول کا افتتاح ہوا، ویسے ہی آج مولانا انیس بلگرامی صاحب کی آرمور آمد پر مدرسہ نورہ الاسلام پر کیا گیا شاندار استقبال۔ آرمور میں جلسہ استقبال رمضان کے موقع پر مہمان خصوصی مولانا انیس بلگرامی تشریف لائے۔ اس موقع پر انہوں نے آرمور کی قدیم درسگاہ مدرسہ نورہ الاسلام کا دورہ کیا، جن کا مدرسے کے معلم حافظ عبدالوحید صدر، مرکزی کمیٹی آرمور محمد معین الدین صدر، مسجد شوکت الاسلام کے علاوہ دیگر ذمہ دار و حفاظ نے بہترین استقبال کرتے ہوئے مولانا کی شال پوشی انجام دی۔ اس موقع پر مولانا نے یہاں پر دعا کا اہتمام کیا اور یہاں کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے اور اس مدرسے شوکت الاسلام جیسے مدارس میں داخلے دلوائے۔ اس موقع پر صدر مرکزی کمیٹی آرمور محمد معین الدین کاظم علی، صدر جمعیت العلماء حافظ شیخ ابراہیم محمد رضوان، صدر مسجد سلیمان نفیس حافظ محمد عمران، حافظ محمد اطہر، حافظ محبوب، مفتی عظیم الدین، حافظ عبدالرحمان دوسرے موجود تھے۔ مدارس بنیادی طور پہ اسلام کے قلعے ہوتے ہیں، ان کا تحفظ دراصل اسلام کا تحفظ، مدارس سے امت کا تعلق برقرار رہنا بہت ضروری ہے۔ امت کو چاہیے کہ اپنے نونہالوں کو اور اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں تاکہ وہ دینی تعلیم سے روشناس ہوں، بیدار ہوں اور دینی تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کا مستقبل سنور جائے، آخرت بن جائے۔ اس کے بغیر تو ممکن نہیں کہ بچہ مومنانہ زندگی گزار سکے، مسلمانہ زندگی گزار سکے۔ تو میری اپیل ہے تمام حضرات سے کہ جہاں جتنے مدارس ہیں، خاص طور پہ یہ بڑا قدیم مدرسہ ہے، اس کا تعاون بھی کریں، یہاں کا خیال بھی رکھیں، لامیں درمیں قدمیں سپنیں جس طرح ہو سکے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو یہاں داخل کریں تاکہ وہ دین سے روشناس ہو سکیں۔ نیشنل ہائی اسکول کے جماعت دہم کے 1996 تا 1997 کے گروپ کی جانب سے اساتذہ کی تہنیتی تقریب کا کیا گیا انعقاد، وہ اسکول کی خدمات کی ستائش۔ شہر نظام آباد کے مشہور و معروف تعلیمی ادارے نیشنل ہائی اسکول خلا روڈ نظام آباد، جہاں پر کئی طلباء نے علم حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے اور آج بھی کئی طلباء اپنے اسکول سے مانوس ہے، اور ایسے ہی طلباء کے ایک گروپ نے ایک تہنیتی تقریب کا اسکول میں انعقاد عمل میں لایا۔ سال 1996 تا 1997 کے جماعت دہم کے طلباء کی جانب سے اساتذہ کے لیے ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جہاں پر ان طلباء نے اپنے جماعت دہم کی یادوں کو تازہ کیا اور اپنے اساتذہ کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہیں تہنیت دی۔ اس تقریب میں اشفاق حصفی، محمد مشیر الدین، پروفیسر ذکی ستاری، ڈاکٹر رضی ستاری کو ان کی خدمات پر تہنیت پیش کی گئی، جبکہ طلباء میں واجد محمد وسیع، عقیل احمد عبدالرحمان، محمد عامر حسین، محمد ریاض، اویس، ریاض لطیف، عمران یونس و دیگر موجود تھے۔ تعمیری اشیاء ریتی کے تاجرین کو پولیس کی جانب سے ہراساں نہ کیا جائے، صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد ٹاؤن مجلس قائدین کی ریت تاجرین کے ہمراہ اے سی پی وینکٹ ریڈی سے ملاقات و تحریری نمائندگی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر ٹاؤن مجلس قائدین نے شہر کے تعمیراتی اشیاء ریت تاجرین ایسوسی ایشن کے ہمراہ نظام آباد اے سی پی وینکٹ ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے موقع پر مجلسی قائدین و ریتی کے تاجرین نے کہا کہ 6 ٹاؤن پولیس کے حدود میں متعلقہ پولیس عہدیداروں کی جانب سے تعمیراتی اشیاء ریت کا کاروبار کرنے والے تاجرین کو ہراساں کرتے ہوئے منی آٹو ٹرالی اور ٹریکٹر کے ذریعے ریت کی منتقلی کے دوران چھوٹے گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ شہر میں ریت کا کاروبار کرنے والے تاجرین ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی و نظام آباد مجلس انچارج سینئر رکن ملک پیٹ حیدرآباد احمد بن عبداللہ بلالہ کو بذریعہ فون اطلاع دی تھی۔ بعد ازاں ریت تاجرین ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے ٹاؤن مجلس قائدین کے ہمراہ اے سی پی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک تحریری میمورنڈم پیش کیا اور کہا کہ گورنمنٹ وے بل اجازت نامے کے ساتھ ریت کی بڑی گاڑیوں کے ذریعے ریت کو ذخیرہ اندوزی کے بعد
निजामाबाद इस रेत को ग्राहकों को इनकी जरूरत के मुताबिक छोटी गाड़ियों के जरिए तामीरी मुकाम पर रेती मुहैया की जाती है। रेती ताजरीन व मजलिस कायदीन से बातचीत के बाद एसीपी वेंकट रेड्डी ने गवर्नमेंट वे बिल इजाजत नामे तामीरी अशिया रेत का कारोबार करने वाले ताजरीन को आइंदा पुलिस ओहदेदारों की जानिब से हरासा न करने का तयख्खुन दिया। बरखिलाफ इसके गैर कानूनी तरीके से रेत का कारोबार करने वाले ताजरीन पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाद अज़ा 6th टाउन पुलिस ओहदेदारों की जानिब से जो रेती के ट्रैक्टर को जब्त किया गया था, इस ट्रैक्टर को टाउन मजलिस कायदीन की बरवक्त नुमाइंदगी के बाद एसीपी के अहकामात पर छोड़ दिया गया। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और मजलिस कायदीन की बरवक्त मौसर व कामयाब और ताजरीन को एसीपी से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए रेत ताजरीन को कारोबार की इजाजत दिलाते हुए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और 6th टाउन पुलिस में जब्त किए गए ट्रैक्टर की बहाली पर रेत ताजरीन ने सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सीनियर रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला निजामाबाद टाउन मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, कायद मजलिस खलील अहमद के अलावा निजामाबाद रेत ताजरीन एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। निजामाबाद के लोकल लारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले जो सैंड वगैरह का जो काम करते हैं, वो लोगों ने असदुद्दीन अवीस साहब को कॉल किया था। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके गाड़ियों को वो इलीगल रेती बोल के पकड़ ले रहे थे। तो असद साहब और बलाला साहब ने हमें फ़ोन करके जाके एसीपी साहब से बात करो बोल के कहा, तो आज आके एसीपी साहब से बात किए और तमाम ही ये लोग लीगल तरीके से रेती परचेज और सेल करते। तो एसीपी साहब ने पूरा तयख्खुन दिया और कि ये जो आप लोगों के जो गाड़ियाँ वगैरह जो पकड़े जा रहे हैं आइंदा नहीं होगा, मगर लीगलाइज तरीके से कारोबार कर लो बोल के एसीपी साहब का शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बर वक्त जैसे ही ये लोग उनसे कांटेक्ट में आए थे, वो बलाला साहब ने हम लोगों को जाके एसीपी साहब से मिलने को कहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मसला हल हो गया। तेलंगाना हुकूमत का मुस्लिम मुलाजमीन के लिए रमज़ान में खुसूसी रियायत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान 2 मार्च से 31 मार्च तक शाम 4 बजे दफातर से जल्दी जाने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रियासत तेलंगाना में काम करने वाले तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन, कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स को ये सहूलत फराहम की जाएगी। ये रियायत मुसलमान मुलाजमीन की सहूलत के पेश नज़र दी गई है ताकि वो रोज़ा इफ्तार और नमाज तरावी की अदायगी में आसानी महसूस करे। रमज़ान में दिन के वक्त रोज़े की हालत में काम करने की मशक्क़त को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने काम के औक़ात में नरमी करने का फैसला किया है। इससे पहले भी तेलंगाना हुकूमत रमज़ान के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को जल्दी दफ्तर छोड़ने की इजाज़त देती रही है और ये रिवायत बरकरार है। ज्ञानेश कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। मरकजी इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की मुद्दत मुकम्मिल होने के बाद मोदी हुकूमत ने इस ओहदे के लिए ज्ञानेश कुमार का इंतखाब किया। वो 26 जनवरी 2029 तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। ज्ञानेश कुमार 1998 बैच के केरला कैडर के IAS ऑफिसर है। वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस ओहदे पर फाइज होने से पहले वो मरकजी वज़ारत दाखिला में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ज्ञानेश कुमार ने आर्टिकल 370 के खात्मे की बिल की तैयारी में भी अहम किरदार अदा किया था, जिसके तहत जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी। इस कमेटी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी शामिल थे। किसानों को दरपेश आबी मसाइल के लिए चीफ मिनिस्टर और वजीर आबपाशी जिम्मेदार। मेडीगुड़ा ब्रिज के इस्तेमाल से दानिस्ता तौर पर गुरेज। हुकूमत की बेहसी के बायस लाखों एकड़ पर मुहित फसलें खुश्क। सूर्या पेट में के कविता का मीडिया नुमाइंदों से खिताब।
रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकाम आबी पॉलिसी पर शदीद तनकीद और कहा कि पानी की अदम सरबराही के बायस रियासत में लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें खुश्क हो रही है, ताहम हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। वो सूर्यापेट में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रही थी। कविता ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को दरपेश आबी मसाइल के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी जिम्मेदार है। ये दोनों दानिस्ता तौर पर मेडीगुड़ा ब्रिज को गैर फाल और गैर कारकर्द बनाते हुए रियासत को खुश्क साली से मुतासर बनाने पर बजद है। कल्वाकुंटला कविता ने इस्तफसार किया कि अगर आंध्र प्रदेश हुकूमत 199 TMC पानी से बंगचरला प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है तो फिर तेलंगाना हुकूमत मेडीगुड़ा ब्रिज को इस्तेमाल नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि अगर पानी दस्तयाब है तो फिर किसानों को क्यों सरबराह नहीं किया जा रहा है? क्या मेडीगुड़ा ब्रिज खराब हो चुका है? इन्होंने कहा कि अगर मजीद 40 दिन पानी फराहम किया जाता है तो लाखों एकड़ फसलें महफूज रह सकती है, मगर हुकूमत की बेहसी किसानों को तबाह व बर्बाद कर रही है। कल्वाकुंटला कविता ने KCR हुकूमत और कांग्रेस हुकूमत का तकाबुल करते हुए कहा कि KCR के दौर में सूर्यापेट को गोदावरी का पानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पहुंचाया गया। कालेश्वरम के जरिए गोदाड़ हल्के में 1.22 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया गया। कृष्णा तास के इलाकों तक भी गोदावरी के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया। अब वही पानी किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी बताएं कि क्या मेडीगुड़ा ब्रिज को जानबूझकर गैर कारकर्द रखा जा रहा है? इन्होंने इंतबा दिया कि अगर फौरी तौर पर पानी की फराहमी यकीनी न बनाई गई तो किसानों की बद्दुआएं कांग्रेस हुकूमत को ले डूबेंगी। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी 14 माह में 30 मरतबा दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, मगर अवामी मसाइल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। KCR पर मुतवातिर तनकीद करने से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस हुकूमत खवातीन के लिए कोई भी फलाई स्कीम मुतारिफ न कर सकी। रियासत में खवातीन पर मुजालिम में इजाफा हो रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। हर जगह मजहबी मुनाफिरत को हवा दी जा रही है, ताहम हुकूमत खामोश है। रियासत में जराइम में इजाफा हो रहा है। खवातीन गैर महफूज है और हुकूमत इन मामलात पर चश्मपोशी इख्तियार किए हुए है। कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो SC ST और BC तबकात के लिए कुछ नहीं कर रही है। KCR ने SC दर्जाबंदी के लिए असेंबली में करारदाद मंजूर की और मरकज को रवाना की, मगर कांग्रेस ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस हुकूमत ने BC आबादी को जानबूझकर कम बताने की साजिश की। साबिका रुकने पार्लिमान निजामाबाद कविता ने कहा कि BRS के दबाव में हुकूमत ने किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान तो किया, मगर अभी तक ज़राई खर्चात की मुकम्मल माफी अमल में नहीं आई। राइतु भरोसा स्कीम का फायदा भी देहातों में सिर्फ निस्फ किसानों को मिला। पिछले साल पानी न मिलने के बायस महबूबाबाद और सूर्यापेट में 4 लाख एकड़ पर मुहित फसलें खुश्क हो गई। उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत को किसानों को जवाब देना होगा। कल्वाकुंटला कविता ने इंतबा दिया कि अगर सूर्यापेट में किसानों की फसलें खुश्क होती है तो वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को इसके अवाकिब और नताइज सामना करना पड़ेगा। अगर बाहैसियत वजीर वो किसानों के लिए पानी फराहम नहीं कर सकते तब इनकी मौजूदगी बेमायने है और बेसूद है। अगर किसानों को इनके हुकूक हासिल नहीं होते हैं तब BRS पार्टी रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त तहरीक का आगाज करेगी। रियासत की तरक्की के लिए BRS की जदोजहद जारी रहेगी। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि BRS हमेशा अवामी हुकूक के लिए जंग लड़ती रहेगी और रियासत की तरक्की में कोई रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारी अराजी पर कब्जों को फौरी हटाने के अहकामात कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा करते हुए की हिदायत जारी। मंगल के रोज कलेक्टर ने निजामाबाद शहर के नवाही इलाकों नागाराम और गुंडाराम का दौरा किया, जहां इन्होंने इंटीग्रेटेड रिहायशी तालीमी इदारों और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए सरकारी जमीनों की निशानदही की। दौरे के दौरान गुंडाराम गांव में सरकारी जमीन पर कई गैर कानूनी कब्जे देखे गए, जिन्हें फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी गई। कलेक्टर ने रेवेन्यू हकाम को सख्त हिदायत दी कि सरकारी जमीनों को कब्जे से बचाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। इन्होंने इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूलों की तामीर के लिए मौसम माहौल, जमीनी रकबे की दस्तियाबी और सड़कों की आमदोरफ्त के पहलुओं का भी जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इलाके के मजमूई हालात का मुताला करके तफसीली रिपोर्ट और तजावीज़ पेश करे। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, तहसीलदार बलराजू और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। पुलिस एहलकारों के लिए ड्राइविंग की महारत बहुत ज़रूरत है। खवातीन कांस्टेबल पर तश्कील दी गई। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर का QRT पर मुश्तमिल खुसूसी क्विक रिएक्शन टीम का बयान। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायरे कार में इंचार्ज पुलिस कमिश्नर मोहतरमा CS सिंधु शर्मा IPS की हिदायत के मुताबिक तमाम नए भर्ती होने वाले पुलिस स्टेशन स्टाफ और आर्म्ड रिजर्व स्टाफ के लिए हंगामी हालात में ड्राइविंग की महारत को बेहतर बनाने के मकसद से 6 हफ्तों पर मुश्तमिल मोटर व व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इनके मुताल्लिका सब डिवीजन और AR हेडक्वार्टर में मुनक्किद की जा रही है। निजामाबाद जिले में मर्द व खवातीन पुलिस कांस्टेबल्स ने 9 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करके
गुज़िश्ता साल नवंबर में निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में रिपोर्ट किया। 345 पुलिस कांस्टेबल ने ज्वाइन किया, जिसकी तफसीलात दर्ज झेल है। सिविल कांस्टेबल्स कुल 218, कांस्टेबल कुल 127, एयर आर्म्ड रिजर्व सिविल कांस्टेबल्स मर्द 150, खवातीन 68, आर्म्ड रिजर्व कांस्टेबल्स मर्द 88, खवातीन 39। पुलिस फोर्स में ड्राइविंग की महारत इंतहाई अहमियत रखती है, क्योंकि बहुत से अहलकार सही तरीके से ड्राइविंग नहीं कर सकते या रोड सेफ्टी कवानीन से ना वाकिफ होने की वजह से हादसात का शिकार हो रहे हैं। इसलिए सब डिवीजन और मरहलेवार बुनियादों पर तमाम पुलिस अहलकारों को ड्राइविंग की तरबियत दी जा रही है। अब तक निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत 60 पुलिस कांस्टेबल्स को ड्राइविंग ट्रेनिंग फराहम की जा चुकी है और मजीद अहलकारों को मुकम्मल महारत हासिल होने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। तश्कील QRT खवातीन कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल निजामाबाद में खुसूसी क्विक रिएक्शन टीम इंचार्ज पुलिस कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक निजामाबाद में खवातीन कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल 2 तश्कील दी गई। QRT खुसूसी क्विक रिएक्शन टीमें ये टीमें किसी भी अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने पर फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मुतल्लिका अफसरान की मदद करेंगी और खवातीन को कंट्रोल करने और अमन व अमान बरकरार रखने में मावन साबित होंगी। इसके अलावा निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाड़ियों की चेकिंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और दीगर मशरूफ मुकामात पर मुआयने किए जाएंगे। पीने के पानी की किल्लत से बचने के लिए पेशगी इक़दाम किए जाए। कलेक्टर के हमरा मुनक़िदा जायज़ा इजलास से मुश्तरका ज़िले के खुसूसी अफसर डॉक्टर ए शरत का खिताब। आने वाले गर्मियों के मौसम को मद्देनजर रखते हुए पीने के पानी की किल्लत से बचने के लिए पहले से ही मनसूबाबंद इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये बात रियासती क़बायली बहबूद महकमे के सेक्रेटरी और निज़ामाबाद मुश्तरका ज़िला खुसूसी अफसर डॉक्टर ए शरत ने कही। इन्होंने हिदायत दी कि ज़िला भर में किसी भी रिहायशी इलाके में पीने के पानी की फराहमी में रुकावट न आए और पानी की सप्लाई के निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जाए। और इसी के साथ मुश्तरका ज़िला दफ्तर मंगल के रोज़ इन्होंने कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की और जिले में पीने के पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। डॉक्टर शरत ने गुज़िश्ता साल पानी की किल्लत से बचाव के लिए की गई खिदमत पर अफसरान को सराहा और हिदायत दी कि इस साल भी गर्मियों के मौसम के अख्तिताम पर इसी जोश व जज्बे से काम करे। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी रिहायशी इलाके में पानी की किल्लत का इम्कान हो तो फौरन मुतबादिल इंतजामात किए जाए। इन्होंने मजीद कहा कि बोरवेल्स की मरम्मत करने वाले मैकेनिक हर वक्त दस्तयाब हो और जैसे ही किसी खराब बोरवेल की इत्तला मिले चंद घंटों के अंदर अंदर मरम्मत मुकम्मल करके पानी की किल्लत के मसले को फौरी हल किया जाए। पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए जारी कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की भी हिदायत दी गई। अगर कहीं भी पानी की किल्लत पैदा हो तो गाँव की पंचायत के टैंकरों के जरिए पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और अगर जरूरत हो तो करीबी गाँव के पंचायत टैंकरों को भी इस्तेमाल किया जाए। इन्होंने कहा कि दही इलाकों में पानी की फराहमी के लिए मंगल के रोज कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु महकमे के अफसरान को मुसलसल निगरानी की वाज़ेह हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा तहसील के खुसूसी अफसरान को पाबंद किया गया है कि वो हर हफ्ते इलाकों का दौरा करे और निगरानी को यकीनी बनाए। इन्होंने वजाहत की कि निजामाबाद, बोधन, आरमूर और दीगर इलाकों में पीने के पानी की फराहमी के लिए ज़खायर में मुनासिब मिक़दार में पानी दस्तियाब है और तमाम तहसीलों में MPDOs और MPOs पर मुश्तमिल कलेक्टर्स टीमें मुसलसल पानी की सप्लाई की निगरानी करेंगी। कलेक्टर ने बताया कि वो मुकामात जहाँ पानी की किल्लत का खतरा ज्यादा है वहाँ मुतबादिल ज़राए से पानी की फराहमी के लिए पहले से मनसूबाबंदी की जा रही है। मजमूई तौर पर जिला भर में पानी की सप्लाई आम तौर पर ठीक तरीके से जारी है, लेकिन अगर गर्मियों में किसी भी इलाके में मुश्किलात पैदा हो तो फौरी इक़दाम किए जाएं। इस इजलास में इजाफी कलेक्टर अंकित, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, मिशन भगीरथा, RWS और दीगर महकमों के अफसरान शरीक हुए। रेवंत रेड्डी 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे। काबीना की तौसी में पसमानदा तबकात को ज्यादा नुमाइंदगी दी जाएगी। महेश कुमार गौड़। तेलंगाना PC के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 5 साल तक रेवंत रेड्डी ही हमारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे। गांधी भवन में कांग्रेस के OBC डिपार्टमेंट के कौमी सदर अजय सिंह यादव के साथ मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुस्तकबिल में तेलंगाना में BC के चीफ मिनिस्टर बनने के इम्कानात है। अलबत्ता जारिया मियाद में रेवंत रेड्डी ही रियासत के चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पसमानदा तबकात को हुक्मरानी में हिस्सेदार बनाने के मामले में राहुल गांधी काफी संजीदा है, इसलिए वो दावे के साथ कह सकते हैं कि रियासत में एक ना एक दिन BC कायद चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। PCC सदर ने कहा कि BC कायद को चीफ मिनिस्टर बनाने की हिम्मत सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, बाकी कोई भी जमाते पसमानदा तबकात के कायद को चीफ मिनिस्टर बनाने के मामले में संजीदा नहीं है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में होने वाले हर एक इंतखाबात में BC का मौजू ज़ेरे बहस रहेगा। इन्होंने ये भी कहा कि काबीना में अनकरीब होने वाली तौसी में भी पसमानदा तबकात को ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी दी जाएगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबकात की तरक्की और
اور بہبود کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ حکومت کی سنجیدگی اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ حالیہ دنوں میں کانگریس حکومت نے ذات پات پر مبنی سروے کرواتے ہوئے پسماندہ طبقات کی آبادی کا پتہ چلایا ہے۔ انہوں نے BC تحفظات کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے پر وزیر اعظم مودی سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے ریاست کے BJP قائدین پر زور دیا کہ وہ وزیر اعظم پر دباؤ ڈالتے ہوئے دستور کے 9ویں شیڈول کے تحت پسماندہ طبقات کو تحفظات فراہم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ طلباء سخت محنت کرتے ہوئے اپنی تعلیمی مہارتوں میں اضافہ کریں اور ملک کی ترقی کے لیے خدمات انجام دیں۔ سابقہ وزیر و بودھن رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی کا خطاب۔ سابقہ وزیر بودھن MLA سدرشن ریڈی نے طلباء کو مہارتوں میں بہتری لانے اور حکومت کی جانب سے فراہم کردہ روزگار کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ ڈگری کالج میں آگاہی سیمینار SSR ڈگری کالج SSR تعلیمی ادارے کے زیر اہتمام SSR نظام آباد کے خلیل واڑی میں واقع مہارت کی ترقی اور روزگار کے مواقع کے موضوع پر ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں سابقہ وزیر بودھن MLA سدرشن ریڈی مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر سدرشن ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے نئی اسکل ڈیولپمنٹ اسکیمز متعارف کروائی جا رہی ہے جنہیں مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنی مہارتوں میں بہتری لائیں اور جدید اسکلز حاصل کر کے خود کو روزگار کے بہتر مواقع کے لیے تیار کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم کے میدان میں بے شمار مواقع موجود ہیں اور طلباء کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ادارے کی کامیابی پر مبارکباد۔ SSR NAAC ڈگری کالج میں دستیاب سہولیات اور حالیہ دنوں میں SSR سدرشن ریڈی نے گریڈ B++ ادارے کو SSR نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل کی جانب سے ملنے پر چیئرمین ڈاکٹر ماریا گوڑ کو مبارکباد دی۔ اس اجلاس میں کئی معزز شخصیات نے شرکت کی جن میں شامل ہیں SSR تعلیمی ادارے کے چیئرمین ڈاکٹر ماریا گوڑ، اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان، DCC صدر و ریاستی کوآپریٹو یونین لمیٹڈ چیئرمین مانالا موہن ریڈی، کسان کمیشن چیئرمین گڑو گنگادھر، نوڈا چیئرمین کیشا وینو، نظام آباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ضلع لائبریری چیئرمین انتا ریڈی راجا ریڈی۔ یہ تقریب طلباء میں اسکل ڈیولپمنٹ اور روزگار کے نئے مواقع سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ బోధన చేసి మీరు కూడా మీ దగ్గర విద్యాభ్యాసన చేసినందుకు సర్టిఫికేట్ సంపాదించినందుకు మాధవ్ గారు కాదు మీరందరూ మాధవ్ గారు మేనేజ్మెంట్ అన్ని క్లాసెస్ అవన్నీ మీటి ఉంటున్నారు అకామిడేషన్ బాగా చేస్తారు దెన్ మీరు టీచింగ్ ఏదో ఉండాలని నేర్పడము కానీ ఇద్దరికి మా పిల్లలకు అంత టీచింగ్ చేసినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను। बालकोंडा ईंट भट्टी मालिकान को MEO ने जारी की शोकास नोटिस। बालकोंडा मंडल के इतुरा पेट और जलालपुर में मौजूद ईंट भट्टी मालिकीन श्रीनिवास वीनू और इमरान खान को आज शोकास नोटिस जारी की गई। ये नोटिस मंडल एजुकेशन ऑफिसर MEO B राजेश्वर की जानिब से जारी की। एजुकेशन ऑफिसर ने बयान दिया कि स्कूल जाने की उम्र के बच्चों को तालीमी इदारों में दाखिल करवाने, इनके लिए ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की सहूलत फराहम करने की जिम्मेदारी ईंट भट्टी मालिकीन पर आयद होती है। चूँकि ये मालिकीन इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहे, इसलिए बालकोंडा के CRP अफसरान प्रभाकर और समलता राजनीला के जरिए शोकास नोटिस जारी की गई। बी राजेश्वर ने बताया कि ये मामला जिले के आला अफसरान और लेबर ऑफिसर के इल्म में भी लाया जाएगा ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। इन्होंने निशानदेही की कि ये ईंट भट्टी मालिकीन दीगर रियासतों से मजदूरों को लाकर इनसे काम करवा रहे हैं, मगर इनके बच्चों को स्कूल भेजने में गफलत बरत रहे हैं। एजुकेशन ऑफिसर ने मजीद कहा कि इन मजदूर बच्चों के आधार कार्ड की तैयारी और आपार ID जनरेशन में ताखैर हो रही है। दिसंबर से इस अमल में रुकावटें आ रही है, जिसके बायस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने संजीदगी से नोटिस लेते हुए शोकास नोटिस जारी की है। इन्होंने कहा कि इन भट्टियों पर धूल और मिट्टी भरे माहौल में काम करने से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इन्होंने खबरदार किया कि अगर काम की जगह पर किसी भी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी ईंट भट्टी के मालिकीन पर आयद होगी। एजुकेशन ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा कि अब भी वक्त है कि ईंट भट्टी मालिकीन अपनी जिम्मेदारी निभाए, वो मजदूर बच्चों के आधार कार्ड बनवाने और आपार ID रजिस्ट्रेशन के अमल में ताउन करे। अगर वो ऐसा ना करे तो आला हक्काम को शिकायत दर्ज करवाकर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माह रमजानुल मुबारक में टैक्स वसूली और जुर्माने में नरमी व रियायत के अलावा साफ सफाई के नज़्म को बेहतर बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन की नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया अक़लियती इलाकों का दौरा।
शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन वफद, साबिका डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, सीनियर कॉरपोरेटर एम ए खुद्दूस, साबिका कॉरपोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान, साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मिसबाउद्दीन और मोहम्मद अबरार ने कल निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर से इनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर को बताया कि माह रमजानुल मुबारक के मौके पर घरेलू और नल टैक्स की वसूली में नरमी और जुर्माने में रियायत दी जाए। कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर को बताया कि शहर के मुख्तलिफ अक़लियती इलाकों में बिलखुसूस मस्जिद अरफात अहमदपुरा कॉलोनी नज़द ख़वातीन सेंटर जमात इस्लामी व मस्जिद हाशमी खिला रोड से मुत्तसिला ड्रेन सिस्टम में खराबी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अदम सफाई की वजह से माह रमजानुल मुबारक के दौरान अवामुल नास बिलखुसूस रोजेदारों और मुसल्लिहान मस्जिद को शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। साबिका डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम ने म्युनिसिपल कमिश्नर से तेलंगाना रियासती हुकूमत के तरक्याती बजट LRS को माह रमजानुल मुबारक के पेश नज़र रखते हुए शहर के मुख्तलिफ अक़लियती इलाकों की तरक्की और अवामी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस मुलाकात के मौके पर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन की सिफारिश पर आज सुबह के अव्वलीन सातों में कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन, साबिका डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम व साबिका मामून कॉरपोरेटर अशफाक अहमद खान उर्फ पापा व दीगर के हमरा म्युनिसिपल कमिश्नर ने म्युनिसिपल AEO दीगर सैनिटरी अमले के साथ शहर के अक़लियती इलाकों का दौरा किया। म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपने मातहत अमले व कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन के हमरा हाशमी मस्जिद से मुत्तसिला व अकब मस्जिद किनाल का मुशाहिदा किया। अलावा अजीम म्युनिसिपल कमिश्नर ने अहमदपुरा कॉलोनी मस्जिद अरफात व ख़वातीन हॉल जमात इस्लामी से मुत्तसिला ड्रेन का भी जायजा लिया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि जल्द अज जल्द बल्दी अमले के जरिए इन ड्रेन्स की सफाई और कचरे की नकासी की जाएगी और माह सयाम से कब्ल जंगी खतूत पर शहर के मुख्तलिफ अक़लियती इलाकों बिलखुसूस मस्जिद हाशमी व मस्जिद अरफात से मुत्तसिला ड्रेन्स के लिए बेहतर इक़दामात करने कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन को दिया तयक़ुन। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद अब्दुल मुक़ीत रिजवी और मसाजिद के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। MLC इंतख़ाबात में BJP उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी, कायदीन अपने अपने हल्के में मेहनत करें। खुसूसी हिकमत अमली इजलास BJP कायदीन का इज़हार। करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, मेडचल असातिज़ा और ग्रेजुएट MLC इंतख़ाबात के पेश नज़र निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के मंडल सदूर और पार्टी कारकुनान के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। BJP MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इस इजलास से खिताब करते हुए BJP के MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि निज़ामाबाद जिला इंदौर BJP का मजबूत गढ़ रहा है। इन्होंने हालिया दहली इंतख़ाबात के नताइज का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आ रही है। इन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 6 झूठी गारंटियां और 420 वादे किए हैं जिनकी वजह से अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। साबिका BRS हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए 3000 रुपये भत्ता और 1 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने भत्ता 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये करने और 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि तुलबा को स्कॉलरशिप और फीस रिमेंबर्समेंट न मिलने की वजह से गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से GO से वो मुश्किलात का शिकार है। सरकारी मुलाजमीन 317 से शदीद मसाइल का सामना कर रहे हैं। इन तमाम मसाइल के पेश नज़र हुकूमत से सवाल करने के लिए MLC इंतख़ाबात में BJP के ग्रेजुएट उम्मीदवार चिन्मयी लंजी रेड्डी और असातिज़ा के उम्मीदवार मलका कोमरैया को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना जरूरी है। इस मौके पर BJP के कई अहम कायदीन मौजूद थे, जिनमें शामिल है BJP निज़ामाबाद जिला सदर दिनेश कुलाचारी, BJP रियासती नायब सदर NVSS प्रभाकर, BJP YM BJP यूथ विंग रियासती सदर महेंद्र, BJP रंगारेड्डी अर्बन सदर साम रंगारेड्डी, BJP निजामाबाद जिला नायब सदर नागुला लक्ष्मी नारायण, BJP अर्बन असम्बली हल्का मंडल सुदूर और दीगर सीनियर कायदीन। इजलास में पार्टी कारकुनान ने MLC इंतख़ाबात में BJP उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। డిమాండ్లు ఏదైతే వారి కమిట్మెంట్ ఇచ్చారో, ఏదైతే యూత్ డిక్లరేషన్ హైదరాబాద్లో చేసారో, భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి సాక్షిగా చేసిన నిరుద్యోగులకు వాళ్ళు BRS ప్రభుత్వం 3000 నెలకని, ఈయన 4000 లక్ష ఉద్యోగాలని, సంవత్సరం లోపు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ జరిగాయి? లేడీస్కు స్కూటీలు ఇస్తారని చెప్పారు, ఏమైనా అవుతుందా? तुलबा ट्रैफिक कवायद पर सख्ती से अमल करते हुए खुद भी महफूज रहे और दूसरों को भी महफूज रखे। नालंदा स्कूल में मुनक़िदा रोड सेफ्टी प्रोग्राम से माहिरीन का खिताब।
निजाम आबाद जिले के मरकजी इलाके नैलकल रोड पर वाक़ नालंदा स्कूल में बच्चों के तिब्बी अंजुमन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम रोड सेफ्टी के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर एक आगाही सेशन मुनक़िद किया गया, जिसमें रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ एक QR कोड पोस्टर भी मुतारिफ कराया गया। इस मौके पर डॉक्टर श्री शाइलम ने कहा कि बगैर हेलमेट के सफ़र करना, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाना जैसे इक़दामात हादसात का बायस बन रहे हैं। इन्होंने तुलबा को मशवरा दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ साथ दूसरों को भी इन बातों से आगाह करे। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक क़वानीन और रोड सेफ्टी क़वायद की पैरवी करते हुए गाड़ियां चलाए और शराब पीने के बाद गाड़ी ना चलाए। मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट पहनने की ताकीद की ताकि हादसात से बचाया जा सके। इन्होंने कहा कि साइन बोर्ड्स पर दी गई हिदायत और मशवरों पर अमल करते हुए महफूज तरीके से गाड़ी चलाए और अपनी मंजिल तक पहुँचे। गाड़ी चलाने के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूरी है। इन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ इस सूरत में रोड हादसात में कमी मुमकिन है जब ड्राइवरों के रवैयों में तब्दीली आए। इन्होंने कहा कि रोज बरोज गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के तहत गाड़ी चलानी चाहिए। गलत रास्ते पर गाड़ी चलाने से गुरेज करना चाहिए। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन, रियासती काबीना के रुकन टी राजशेखर, खजानेदार कुड़पे रविंदर, नालंदा स्कूल के चेयरमैन और रेड क्रॉस निजामाबाद डिवीजन के नायब चेयरमैन मुरली कृष्णा, डायरेक्टर अंगोहिया, प्रिंसिपल श्रीमता तनोजा, IP के सेक्रेटरी श्रीकांत और तुलबा ने शिरकत की। Seconders, they don't follow traffic rules and regulations and drink and drive. These are the one of the drink. Very wrong. There is a difference between drunk and drive and drink and drive. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत का मुस्लिम मुलाजमीन के लिए रमज़ान में खुसूसी रियायत का ऐलान। सरकारी अराजी पर कब्जों को फौरी हटाने के अहकामात कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा करते हुए की हिदायत जारी। तुलबा सख्त मेहनत करते हुए अपनी तालीमी महारतों में इजाफा करे और मुल्क की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम दे। साबिका वजीर व बोधन रुकने असम्बली P सुदर्शन रेड्डी का खिताब। किसानों को दरपेश आबी मसाइल के लिए चीफ मिनिस्टर और वजीर आबपाशी जिम्मेदार। मेडीगुड़ा ब्रिज के इस्तेमाल से दानिस्ता तौर पर गुरेज। हुकूमत की बेहिसी के बायस लाखों एकड़ पर मुहित फसलें खुश्क। कुरियापेट में के कविता का मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। माह रमजानुल मुबारक में टैक्स वसूली और जुर्माने में नरमी व रियायत के अलावा साफ सफाई के नज़्म को बेहतर बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन की नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया अक़लियती इलाकों का दौरा। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।